Good evening, dear students. So in the previous video, we deals with the electrolysis and electrolytic cell and Faraday's law of electrolysis. So this is second part of electrolysis in which we deals with the product of electrolysis. Product of electrolysis in molten conditions are quite easy to identify, but in aqueous conditions we have more than one cation and more than one anion. In such cases we have to identify which cation or which anion will discharge at respective electrodes. So our main purpose for this video is to identify product of electrolysis and the conditions on which product of electrolysis depends. So product of electrolysis mainly depends on two things. First is nature of electrolyte. Nature of electrolyte can be molten state or in aqueous state. In aqueous state we have water along with electrolyte, but in molten state we have only electrolyte. For example, if we have KCl, so in molten condition KCl electrolyte will give only K positive and Cl negative, but in aqueous conditions KCl give these ion but also water dissociate to form H positive plus OH negative. So now in such conditions we have two cations, potassium ion and hydrogen ion, and similarly two anions, chloride ion and hydroxyl ion. So in such cases only one ion deposit at a particular electrode. So we have to identify that particular ion and the factors on which this deposition of cation or anion depends. So first factor is nature of electrolyte, means molten or aqueous. So molten state में कोई ज़्यादा दिक्कत हमें होती नहीं है बेटा. molten state में जो cation होगा वो हमें पता है हमेशा ही कैथोड पे डिपॉजिट होगा और इसका रिडक्शन होगा, और एनायन जो होगा दैट विल डिपेंड्स डिपॉजिट ऑन एनोड, और यहाँ जो है वो ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे जो है वो रिडक्शन होगा. सो मोल्टन स्टेट के अंदर यदि इलेक्ट्रोलिसिस किसी इलेक्ट्रोलाइट की कराई जाती है तो वहाँ प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान होती है. कैटायन जो है वो हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट करेगा और एनायन जो है वो हमेशा एनोड पे डिपॉजिट करेगा. इन मोल्टन कंडीशंस यू हैव टू रिमेंबर दैट apart from electrolyte we have water also. So water on dissociation give H positive and OH negative. So we have to look that which cation is deposited and which anion is deposited. Second factor on which product of electrolysis depends is the type of electrodes. जो आपने कैथोड और एनोड लिए हैं वहाँ पे वो किस तरीके के नेचर के हैं बेटा. इलेक्ट्रोड मेनली दो तरीके के होते हैं, वन इज़ इनर्ट एंड सेकंड इज़ एक्टिव इलेक्ट्रोड, या इन्हीं को हम कहते हैं, इनर्ट को कहा जाता है नॉन अटैकेबल और इनको हम कहते हैं अटैकेबल. सो इनर्ट इलेक्ट्रोड के सिंपल से एग्जांपल होते हैं बेटा, जैसे प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, गोल्ड है, और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आपका सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, इस तरीके के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. तो इनर्ट इलेक्ट्रोड बेसिकली वो होते हैं जो कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी सरफेस देते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को होने के लिए या कंडक्शन के लिए बेसिकली.
बट एक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिसिस। सो इनके लिए एक जनरल रूल है जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ टाइम के बाद, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस वी हैव more than one cation and more than one anion. In such cases, cation and anion having more discharging tendency will discharge first and deposit at particular electrodes. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के। एक बार मैं फर्स्ट की बात करता हूं। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एनोड पे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। Active electrodes gets oxidized themselves at anode। इसका मतलब क्या है, अभी जब हम एग्जाम्पल्स में आएंगे वहाँ हम इसको डील करेंगे, बट अभी आप इसको याद रखिएगा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड यदि कहीं इलेक्ट्रोलिसिस में दिया गया है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। सेकेंड जो फैक्टर है ये कहता है कि यदि हमारे पास दो कैटायन या दो एनायन है, जैसे मान लीजिए हमने लिया K पॉजिटिव और H पॉजिटिव, और एक हमने लिया था Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, तो ऐसे केस के अंदर वो आयन किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगा जिसकी डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। डिस्चार्जिंग टेंडेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक होता है डिस्चार्जिंग टेंडेंसी, एक होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है बेटा। तो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी यदि K पॉजिटिव की ज़्यादा होगी तो K पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। सिमिलरली यदि डिस्चार्जिंग पॉजिटिव टेंडेंसी मान लीजिए क्लोराइड आयन की ज़्यादा है तो एनायन पे ये डिपॉजिट हो जाएगा। सो आपको याद रखना क्या है इसके अंदर, हमें याद रखना है ये ऑर्डर जो यहाँ दिया गया है बेटा। फर्स्ट आप देखोगे दिस इज डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ एनायंस। यदि आप एनायंस की बात करते हो तो जो I नेगेटिव है वो सबसे पहले डिपॉजिट होने की टेंडेंसी रखता है, फॉलोड बाय ब्रोमाइड आयन, फॉलोड बाय क्लोराइड आयन, देन हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, और फ्लोराइड आयन जो है वो सबसे लास्ट में चला जाता है बेटा। सिमिलर बेसिस पे यदि आप डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ कैटायंस देखते हो तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का जैसा ऑर्डर होता है वैसा ही है बेटा। तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे की तरफ होते हैं यूजुअली, कॉपर वहाँ ऊपर होता है, बट यहाँ पे डिस्चार्जिंग टेंडेंसी पे आपने याद रखना है कि जो कॉपर की डिस्चार्जिंग टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यदि मान लीजिए कहीं पे हमारे पास Cu2+ बनता है और H+ बनता है तो इसकी जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है डिपॉजिट होने की एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके के फैक्टर्स आते हैं बेसिकली बेटा। एक है जो यहाँ लिखा हुआ है डिस्चार्जिंग टेंडेंसी या डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का, और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो हम दोनों को वन बाय वन डील करेंगे। मैं मेनली डील करूंगा इसके अकॉर्डिंग, डिस्चार्जिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग, और एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। नाउ कैथोड पे हमें पता है कि बेटा रिडक्शन होता है, इस चीज़ को समझिएगा आप ध्यान से, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो SRP जितना ज़्यादा होगा कैथोड पे, यदि कोई रिएक्शन मान लो होती है तो उसका जितना SRP होगा, इसका मतलब ये है कि उस रिएक्शन की जो टेंडेंसी है वो उतनी ही ज़्यादा है वहाँ होने की। नर्स्ट इक्वेशन में हमने इनकी बात की थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो SRP कब पॉजिटिव लेना था कब नेगेटिव लेना था वो हमने डील किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जितना ज़्यादा SRP ज़्यादा होगा किसी रिएक्शन के लिए वो कैथोड पे उतनी ही ज़्यादा फिजिबल होती है,
और यदि SRP उसका कम है तो फिर उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है बेटा एनोड पे होने की। तो वही चीज़ यहाँ यूज़ होती है। एट कैथोड रिएक्शंस हैविंग मोर वैल्यू ऑफ SRP इज प्रीफर्ड। यदि मान लीजिए कैथोड पे दो रिएक्शन होती हैं और दोनों का SRP आपको दिया गया है, तो कैथोड पे वही रिएक्शन होगी जिसका SRP ज़्यादा होगा, मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका बड़ा होगा वो डिपॉजिट करेगा कैथोड पे। सेकंड देखिए, एट एनोड रिएक्शंस हैविंग लेस वैल्यू ऑफ SRP इज प्रीफर्ड। एनोड पे वो रिएक्शन फिजिबल होगी जिसका SRP कम होगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यूज़ करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे इसको। बट सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ एनायंस एंड कैटायंस। सो इस ऑर्डर को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। NO3 और सल्फेट की यदि आप बात करते हो, देखो NO3 में यदि आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ये प्लस आएगा, +5, और सल्फेट में निकालोगे तो यह आएगा +6। अब प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो +5 है और सल्फर की जो हो सकती है वो +6 है। तो यदि इनका ऑक्सीडेशन होना है बेटा, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पहले ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, और इसी वजह से जो इनकी टेंडेंसी है, आप ध्यान से देखिएगा, वो बिल्कुल लास्ट में चली जाती है बेटा। तो यदि कहीं भी एक्वस कंडीशंस हैं और एक्वस कंडीशंस में मान लीजिए ये आयन है और एक्वस में हमें पता है OH नेगेटिव भी होगा, तो ऐसे केस के अंदर OH नेगेटिव हमेशा ऑक्सीडाइज होगा O2 में, और आपको जो एनोड पे प्रोडक्ट मिलेगा वो O2 गैस मिलेगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, सुनिएगा इस चीज़ को ध्यान से, मैंने क्या बोला है। NO3 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव, यदि आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें +5 है, यहाँ +6 है। तो यदि आप इनको ऑक्सीडाइज कराते हो तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। तो यदि मान लीजिए किसी सोल्ट के अंदर या किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक्वस कंडीशंस में ये एनायन बनते हैं, तो हमेशा वहाँ पे OH नेगेटिव जो है वो एनायन पे डिपॉजिट करेगा बेटा, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दीज आयंस। आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं वो। बाकी ये चीज़ जब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आएंगे इसको हम बड़ी आसानी से करेंगे आगे। सिमिलर बेसिस पे यदि आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखो ध्यान से, जो नीचे बनी हुई है एक तरीके से डिस्चार्जिंग टेंडेंसी, यहाँ भी जो ये इस तरीके के एलिमेंट है बेटा, देखो हाइड्रोजन से इस तरफ, इन सभी का जो SRP होता है बेटा वो नेगेटिव होता है यूजुअली, और इस तरफ के जो एलिमेंट है इनका जो SRP होता है वो होता है पॉजिटिव। तो यदि एक्वस कंडीशंस के अंदर मान लीजिए हाइड्रोजन से इस तरफ वाले एलिमेंट्स हैं, तो हमें पता है कैटाइंस के केस में वो वैल्यू प्रीफर्ड होती है जहाँ पे SRP ज़्यादा होता है, जो ये लिखा हुआ है देखो। और हाइड्रोजन का SRP हमें पता है 0 वोल्ट होता है, इन बाकी सब का नेगेटिव है। तो क्योंकि 0 माइनस वाली वैल्यूज से हमेशा बड़ा होगा, तो इन पर्टिकुलर केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा बेटा। मीन्स हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H2। लेकिन हाँ, इन पर्टिकुलर केसेस में यदि आप देखोगे यहाँ फिर यही मेटल डिपॉजिट होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं और फिर लास्ट में इसको जनरलाइज करेंगे एक बार कि हमने क्या बात की है ये। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl में हमें पता है हमारे लिए कोई दिक्कत है नहीं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हमें पता है NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा।
तो यहाँ पे एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने ये पढ़ा था कि जो कैटायन है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है रिडक्शन के थ्रू, और जो एनायन होता है वो एनोड पे डिपॉजिट होता है वाया ऑक्सीडेशन। तो वही काम होगा, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में चेंज होगा। क्लोरीन जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है। यदि आप क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन के लिए मैं ये रिएक्शन लिख सकता हूँ बेटा, Cl माइनस चेंज टू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। यदि आप देखोगे तो ये बैलेंस रिएक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेचर में जो Cl एग्जिस्ट करता है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है, वो Cl2 गैस की फॉर्म में होता है बेटा। तो उसी को हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 2 मोल यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ Cl2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में रिलीज होंगे। तो इस वजह से इस रिएक्शन को मैंने एक साथ ही लिखा हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, तो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम, और एनोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Cl2 गैस। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ एक्वस, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुल बेटा, एक्वस कंडीशंस। तो एक्वस कंडीशंस का मतलब ये है कि Na प्लस और Cl माइनस तो हमारे पास होगा ही होगा, इसके अलावा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी हमारे पास होगा। और यदि आप इनकी डिस्चार्जिंग टेंडेंसी देखोगे तो जिसको हमने अभी देखा था, तो उस डिस्चार्जिंग टेंडेंसी में हाइड्रोजन जो है वो पहले आता था एज कंपेयर टू सोडियम। तो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा और ये चेंज हो जाएगा H2 में। और Cl और OH नेगेटिव की यदि आप बात करोगे तो Cl जो है वो स्टार्टिंग में आता था, पहले I आएगा, फिर Br आएगा, फिर Cl आएगा, उसके बाद OH आता था। तो ये जो Cl है वो डिपॉजिट होगा Cl2 की फॉर्म में। तो जो प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे उनको ध्यान से देखिए एक बार। NaCl डिकम्पोज हुआ, वाटर डिकम्पोज हुआ, तो रिडक्शन किसका होगा, 2H पॉजिटिव बेसिकली हाइड्रोजन आयन का। इसी चीज़ को मैं फोकस करना चाह रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। यदि एक्वस कंडीशंस हैं तो वहाँ हमेशा ही मोर देन वन कैटायन और मोर देन वन एनायन होगा, और ऐसे केस के अंदर हमेशा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे एक ही कैटायन डिपॉजिट करता है और एक ही एनायन डिपॉजिट करता है, और वो कैटायन या फिर वो एनायन वो होगा जिसकी डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो वो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो H पॉजिटिव है उसकी जो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी है वो Na प्लस से ज़्यादा थी, और Cl नेगेटिव की जो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी है वो OH नेगेटिव से ज़्यादा थी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा H2, एक प्रोडक्ट बनेगा Cl2। चलिए, और इन दोनों केसेस में देखो बेटा हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हम यूजुअली प्लेटिनम लेते हैं, याद रखिएगा इस बात को। थर्ड देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड तो यहाँ भी प्लेटिनम है और एक्वस है, तो इसका मतलब वाटर है, और वाटर के साथ और कौन है, AgNO3। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे देखो बेटा, डिकम्पोजिशन से जो आयन बनेंगे, एक बनेगा Ag पॉजिटिव H पॉजिटिव, एक बनेगा OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। और इसी चीज़ को हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था बेटा कि NO3 में जो नाइट्रोजन होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो यदि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH माइनस का। तो एनायन पे तो ये डिपॉजिट करेगा बेटा। और Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव की यदि आप बात करते हो तो Ag पॉजिटिव की डिस्चार्जिंग टेंडेंसी जो होती है वो H पॉजिटिव से ज़्यादा होती है। तो एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा सिल्वर और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा O2। ध्यान से देखिएगा, सिंपल रिएक्शंस है बेटा, ऑलरेडी आप ये 11th क्लास में पढ़ के आए हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सिर्फ ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो डिपॉजिट होगा। चलिए फोर्थ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा एक बार। सिल्वर इलेक्ट्रोड का मतलब है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है।
और एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में मैंने आपको एक बात बताई थी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखी हुई थी कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं एनायन पे। देखो ये लिखा हुआ है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड देमसेल्फ एट एनोड। चलिए अब वापस आते हैं इसी एग्जाम्पल पे जो हम कर रहे थे। तो हमारे पास क्या होगा, देखो बेटा, तो जो हमारे पास बनेगा, एक Ag पॉजिटिव बनेगा, एक NO3 बनेगा, एक H पॉजिटिव बनेगा और एक OH नेगेटिव बनेगा। अब कैथोड पे Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव है और Ag की हमें पता है डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो यहाँ तो रिएक्शन वही होगी बेटा। लेकिन एनोड पे क्या होगा? अब एनोड पे जो एक्टिव इलेक्ट्रोड हमने लिया है वही ऑक्सीडाइज होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो Ag को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो हमें पता है Ag प्लस में जाता है क्योंकि ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर जाएगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, देखो कैथोड पे मिलेगा Ag, एनोड पे हमें मिलेगा Ag पॉजिटिव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड यदि दिया गया है तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडाइज होगा। ये रूल है एक तरीके से, आप याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड यहाँ भी प्लेटिनम है लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO4 हमें पता है बेटा ये डिकम्पोज होता है 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। और क्योंकि ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब ये है कि यहाँ जो वाटर होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा बेटा। अब यहाँ नो डाउट एक्वस नहीं लिखा हुआ बट ये अंडरस्टूड है कि यहाँ वाटर होगा और वाटर भी आपको देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो कैटाइन तो देखो दोनों हमें सेम ही मिल रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, तो यहाँ तो हमें किसी चीज़ को कंपेयर करने की ज़रूरत है नहीं। तो H पॉजिटिव सिंपली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H में चेंज होगा, लेकिन ये हमें पता है कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन में चेंज कर देंगे। अब बात आती है एनायन के केस में। तो एनायन के केस में यहाँ देखो बेटा, दो एनायन कौन कौन से बने हैं, एक बना है OH नेगेटिव और एक बना है SO4 2 नेगेटिव। और इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये +6 में होता है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, O2। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एक बनेगा H2, एक बनेगा O2। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड। वंस अगेन Cu इलेक्ट्रोड इज योर एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये एग्जांपल स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा है, इलेक्टिव इलेक्ट्रोड होता है ये। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में आप ध्यान रखिएगा जो चीज़ आपको बोली थी, एक्वस है तो नो डाउट Cu2+ आपको मिलेगा, H+ मिलेगा, और कॉपर की जो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है तो कॉपर रिडक्शन होके Cu बनाएगा। सेकंड बात आती है एनोड पे। अब क्योंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये एनोड पे क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये आपको पता है ये Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है। So this is a simple concept of identifying product of electrolysis on the basis of discharging tendency of cation and anion. इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, इस चीज़ को ध्यान से आप सुन लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्टिव इलेक्ट्रोड यदि होता है किसी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान तो वो हमेशा ही ऑक्सीडाइज होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है तो सिर्फ एनोड की जो रिएक्शन थी वहाँ फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। और सेकंड जो हमने बताया था आपको कि NO3 नेगेटिव हो या सल्फेट हो, ये बेटा ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ही इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। सो दिस इज़ द कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्जिंग टेंडेंसीज। नाउ we will discuss one example of product of electrolysis on the basis of electrode potential.
आप जो कंसेप्ट यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, बट यहाँ एक टर्म यूज़ होनी है, मैं उसका मीनिंग बताता हूँ आपको वो है क्या। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ही यूज़ करें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ सपोज कीजिए बेटा हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करके। तो एक्वस NaCl के केस में जो हमारे पास होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और वाटर होगा बेटा। अब वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और ये रिड्यूस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, तो ये 0 पे भी जा सकती है और ये इंक्रीज भी हो सकती है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो इसी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। तो यदि मैं कैथोड की बात करता हूँ बेटा, तो कैथोड पे जो रिएक्शंस हो सकती हैं, एक हो सकती है कि Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके Na में चेंज हो जाए, मीन्स रिडक्शन हो जाए इसका, और दूसरा है कि वाटर का रिडक्शन हो जाए, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग H2 + 2OH नेगेटिव। अब इन दोनों प्रोसेस के लिए SRP दिया गया है बेटा। फर्स्ट के लिए है -2.71 वोल्ट, सेकंड के लिए है -0.83 वोल्ट। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी बेटा स्टार्टिंग में कि कैथोड पे वो रिएक्शन प्रीफर्ड होती है जिसकी SRP ज़्यादा होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको आइडिया है उसका, तो वहाँ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि 2 इलेक्ट्रोड आपके पास होते हैं और दोनों का SRP पॉजिटिव होता है, तो वही रिएक्शन आप कैथोड पे कराते हो जहाँ पे SRP पॉजिटिव होता है, मीन्स ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी यूज़ होगी बेटा। कैथोड पे जो देखा जाता है वो देखा जाता है मोर SRP। तो इन दोनों रिएक्शंस में जो मोर SRP है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो वाटर के लिए है बेटा, -0.83 वोल्ट। तो कैथोड पे यहाँ जो रिएक्शन प्रीफर्ड होगी वो रिएक्शन प्रीफर्ड होगी ये, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा H2, जो हमने डिस्चार्जिंग टेंडेंसी से भी किया था। एनोड की यदि हम बात करें बेटा, तो एनोड पे भी 2 रिएक्शन होंगी, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, एक वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ भी 2 पोटेंशियल होंगे जो SRP वैल्यू दी गई है। अब एनोड पे हम वो देखते हैं कि जो SRP लेस होगी वो, तो लेस SRP जो है वो हमें दिख रही है सेकेंड रिएक्शन की। तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था बेटा O2, बट एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Cl2, क्योंकि डिस्चार्जिंग टेंडेंसी आपने देखा था Cl नेगेटिव की ज़्यादा होती थी OH नेगेटिव से। नाउ इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब ये क्यों ऐसा हुआ है, इस पर्टिकुलर केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। ये जो रिएक्शन आपने कराई है ना बेटा, 2H2O चेंज टू 4H + O2, या बेसिकली मैं ये कहूँ H2O चेंज हुआ है O2 में ऑक्सीडाइज होके, ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है बेटा। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है, और उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को यदि हम इस के पोटेंशियल में ऐड कर दें तो ये जो वैल्यू आती है ये ऊपर वाली वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, और इसी वजह से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है फर्स्ट रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला है। वाटर को जब ऑक्सीडाइज कराया जाता है O2 में, तो यह बहुत स्लो प्रोसेस होती है बेटा। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल वोल्टेज देनी पड़ती है थोड़ी सी, जिसको हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं या ओवर वोल्टेज कहते हैं। तो यदि मैं उस ओवर पोटेंशियल को यहाँ पे ऐड यदि कर दूँ 1.23 में, तो वो जो वैल्यू है 1.36 से बड़ी हो जाती है।
तो क्योंकि एनोड पे वो रिएक्शन प्रीफर्ड होती है जिसका एसआरपी कम है, तो इसी वजह से फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे यूज़ होगी, ना कि सेकंड। सो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ओवर पोटेंशियल क्या होता है? ओवर पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज़ द extra voltage which is required to oxidize water into oxygen। वाटर को ऑक्सीडाइज कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज दी जाती है जिसको हम ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज कहते हैं। और यदि उस ओवर वोल्टेज को मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो ये जो वैल्यू आएगी ये इस वैल्यू से बेटा बड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से स्मॉलर एसआरपी जो क्लोरीन के कोरस्पोंड है यही रिएक्शन को फेवर करेगा और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है Cl2। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप दोनों में से किसी भी मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बट जो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है बेटा, ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ इनका थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज। वहाँ से हम आइडिया लेंगे इस चीज़ का और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो एक बार दोबारा से यदि मैं इस चीज़ को रिवाइज करूं बेटा, तो इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड करते हैं बेटा। एक होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में दो ही चीज़ें होती हैं कि या तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन होगा बेटा मेल्ट फॉर्म के अंदर, और यदि ऐसा है तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। सिर्फ वन कैटाइन वन एनायन होता है। कैटाइन हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होगा, एनायन हमेशा एनोड पे डिपॉजिट होगा। लेकिन यदि एक्वस कंडीशंस हैं तो उन्हीं कैटाइन और एनायन के साथ वाटर के कैटाइन एनायन ऐड हो जाते हैं, मीन्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ऐसे केस के अंदर वो आयन डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोड पे जिसकी डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और उस डिस्चार्जिंग टेंडेंसी का जो ऑर्डर है वो हमने बाद में देखा भी था क्या था। एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में ये चीज़ हमेशा याद रखनी है बेटा कि वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है एनोड पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्टिव इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज एट एनोड। ये हमारे पास डिस्चार्जिंग टेंडेंसीज दी गई हैं कैटाइन एनायन की। इस चीज़ को मैंने फिर से हाईलाइट किया था कि यहाँ ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सेकंड ये है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है बेटा। देखो हाइड्रोजन से जो इस तरीके के एलिमेंट हैं, यदि एक्वस कंडीशंस दी गई हैं और उनमें ये कोई कैटायन है तो हमेशा ये कैटायन ही डिपॉजिट होंगे कैथोड के ऊपर। लेकिन यदि इस तरफ से कोई भी कैटायन दिया हुआ है तो फिर हमेशा ही कैटायन पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H2 गैस। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ हम SRP के अकॉर्डिंग देख चुके हैं कि कैटायन पे वो रिएक्शंस प्रीफर्ड होती हैं जिनका SRP ज़्यादा पॉजिटिव होता है इन द केस ऑफ कैथोड रिएक्शन, और एनोड रिएक्शन वो होगी जहाँ पे SRP लेस होगा। So beta, this is all about product of electrolysis and factors on which it depends. So आप ट्राई करके देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। मेनली यहाँ NCERT से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थे मैं वो सारे सोल्व करा चुका हूँ। इनके अलावा आप ट्राई करके देख सकते हो प्रोडक्ट। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।